A very warm welcome to all of you, Chandigarh art lovers and our distinguished artists. Uh, Chandigarh Lalit Kala Academy has organized this event, Art Residency, which involves our five distinguished artists from Gujarat, Mumbai, Sri Lanka, and Chandigarh. First of all, I would like to invite Bhim Malhotra sir, our chairperson, to say a few words. So, good evening. So, respected our special guest from Vadodara, Mumbai, and Sri Lanka, and our city artist, art lovers. So, I welcome all of you. जैसा कि आपको पता ही है कि वी आर सेलिब्रेटिंग प्रिंट मेकिंग, तो यू ऑल आर पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन and I congratulate all you and thanks on the behalf of Academy. We are organizing this special event. I think this is first time when we have involved some international artists in this residency. So I welcome all of you and I will note and so thank you Rashmita for organizing and coordinating this event and our city artist Mesh Prajapati ji and our guest artist. सो मैं ज़्यादा ना बात करता हुआ और हम चाहते हैं कि वी शुड स्टार्ट दिस presentation. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to introduce our two guest artists today, Mr. Vijay Bagudi from Gujarat and Mr. Anand Nikam from Mumbai. Anand Nikam is a distinguished Indian printmaker and painter with an extensive career spanning over 3 decades. Nikam has held numerous solo shows at prominent venues such as Jahangir Art Gallery, Taj Art Gallery, and has participated in several national and international exhibitions. A recipient of several awards, including honors from Lalit Kala Academy and Bharat Bhavan, Nikam has also contributed significantly as an educator and curator. He served as a faculty member at Sir J.J. School of Art, Mumbai from 1986 to 2020 and has been actively involved in printmaking workshops, biennales, and international collaborations. Our next artist, Mr. Vijay Bagudi, born in Gulbarga, Karnataka, an alumnus of Faculty of Fine Arts at Maharaja Sajirao University of Baroda, he has made significant contributions to contemporary printmaking in India. A recipient of National Award at 40th National Exhibition of Contemporary Art, along with several other prestigious recognitions. His work has been showcased in major national and international exhibitions, including biennales in France, Beijing, and India. He has also played a pivotal role as an educator and organizer, contributing to numerous workshops and academic initiatives in printmaking. He retired as a Dean of Faculty of Fine Arts, MS University of Baroda, in 2021. Currently based in Vadodara, Vijay Bagudi continues to engage actively with medium, enriching with the field with his experience and vision. We welcome you both, sir. So, Mr. Anand Nikam from Mumbai will start with the presentation first, and then we will move to Mr. Vijay Bagudi. Thank you, Rashmita. Thank you, Bhim sir. Welcome to this program, Chandigarh Artist, Art Lover and Students. हम टीचर लोगों को बच्चों के साथ बात करने की आदत होती है. अगर बच्चों से बात नहीं करेंगे तो हम थोड़े अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं. लेकिन आज बहुत सारे दोस्त लोग हैं, कला प्रेमी है, उनके साथ बात कर रहे हैं. मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें मेरे जो प्रिंट मेकिंग की जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, शुरू के मैं काम कैसे करता था और कैसे कैसे कामों में मेरा बदलाव आया, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा. मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में 1984 में पोस्ट डिप्लोमा एजुकेशन का क्लास मैंने ज्वाइन किया था और उस वक्त 1984 में जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा रेड्डी, जो प्रिंट मेकर है यहाँ पे और जो दूसरे पेंटर्स लोग हैं वो भी जानते हैं कि ये प्रिंट मेकिंग के फील्ड में पूरे वर्ल्ड में
ऐसा एक इंडियन आदमी है जिन्होंने अलग टेक्निक्स दी, इनडायरेक्टली एक साथ प्लेट के ऊपर मल्टी कलर किस तरह से प्रिंट करते हैं, इनडायरेक्टली उसको विस्कोसिटी प्रिंटिंग प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पूरे वर्ल्ड को उन्होंने अपने गुरु के साथ काम करते समय, SW हेटर के साथ काम करते समय उन्होंने दी। तो ये कलाकार 1984 में जे स्कूल ऑफ आर्ट में आए थे और उस वक्त मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट था। ओपनिंग के टाइम का ये फोटोग्राफ है, इसमें प्रभाकर कोलते जैसे लोग भी हैं जो टीचर थे और मैं सेंटर में खड़ा हूँ जे स्कूल ऑफ आर्ट का एक स्टूडेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेज है मेरे लिए और इम्पोर्टेंट ये इवेंट था कि इसके कारण मेरा जो फ्यूचर का जर्नी है चेंज हो गया। उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में हम प्लेट पे काम करते थे और कृष्णा रेड्डी ने खुद ने प्रिंट निकाला हुआ उस वक्त का मेरा ये वर्क है, पहला वर्क प्रिंट मेकिंग का। रियली असाइनमेंट के बाद जो हम कॉलेज में काम करते थे उसके अलावा जो शुरू में प्रोफेशनली काम करना शुरू किया उस वक्त का ये पहला विस्कोसिटी का वर्क जो कृष्णा रेड्डी ने प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद जब हम काम तो करना शुरू किया लेकिन स्टूडियो बहुत मुश्किल से होते थे। महाराष्ट्र में आज भी प्रिंट मेकिंग स्टूडियो नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि जिस आदमी ने चंडीगढ़ सिटी को डेवलप किया, डिज़ाइन किया, उस जगह को, उस पवित्र भूमि को आज एक प्रिंट मेकिंग स्टूडियो सिर्फ मोनूमेंटल बिल्डिंग बोल के नहीं प्रिजर्व कर रहे, एक आर्ट स्टूडियो करके गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ यूटी उसको प्रिजर्व करी। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो चंडीगढ़ के कलाकारों ने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि हम जे में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं लेकिन हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। जो मोगली सीरीज़ है, मोगली जो बुक बनाया था वो भी, उसका भी बर्थ प्लेस जे स्कूल ऑफ आर्ट के कैंपस में है, लेकिन आज वो एक अलग इंस्टीट्यूट करके वो रन हो रहा है, हम प्रिजर्व नहीं कर पाए। तो ये आज वो प्रिजर्व किया है, प्रिंट मेकिंग स्टूडियो बोल के काम कर रहे हैं और हम सब लोग, पांचों भी लोग, शायद मुझे लगता है कि हम इसके पहले 2023 में यहाँ आए थे जो ललित कला अकेडमी द्वारा 75 ईयर ऑफ फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे लगता है कि इस सेंटर के भी सेलिब्रेटेड 75 ईयर होने चाहिए क्योंकि 50 के आसपास इसका डिज़ाइनिंग हुआ चंडीगढ़ का, तो 50 से अभी तक देखा जाए तो ये स्टूडियो को, ये स्पेस को भी 75 होना चाहिए। और ऐसे मौके पर हमको यहाँ काम करने का सौभाग्य मिला, यह बहुत बड़ी बात है। तो हम काम करते समय हमको जगह नहीं थी, तो भारत भवन जो जे स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने शुरू किया था। उस वक्त हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर स्वामी जी को वर्क दिखाते समय का ये फोटोग्राफ है। ये दिखाने के पीछे का मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको काम करने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं थी। मतलब स्वामी जी ने बताया तो हम लोगों को, स्वामी जी जैसे लोगों को भी गढ़ी स्टूडियो में काम करने के लिए मुश्किलें आती थी। ऐसे उसके बाद भी हमको तो कोई भी जगह नहीं थे, तो ऐसे समय पे स्वामीनाथन ने भारत भवन में प्रिंट मेकिंग स्टूडियो इस्टेब्लिश किया और उस स्टूडियो में 24 आवर काम करने की इजाज़त थी। यहाँ तक कि उस वक्त काम करते समय आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, खाने के लिए भी ज़रूरत पड़ी, तो स्वामी जी 200 रुपये देते थे महीने के लिए। 200 रुपये में काम भी होता था और खाना भी होता था। तो इस हिसाब से आज अगर मैं आपसे सामने खड़ा हूँ तो उसके लिए स्वामीनाथन और भारत भवन ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मैं जब वहाँ काम करता था तो शुरू के मेरे करीब 20 से 25 साल मैंने लाइनो एचिंग में काम किया है। लाइनो एचिंग मतलब ये जनरली आपने सुना होगा, लाइनो कट इजीली समझ पाते हैं सब लोग, लाइनो कट कॉलेज में भी करते हैं। ये लाइनो एचिंग किया था जो मेरे टीचर थे जे स्कूल ऑफ आर्ट के वसंत परब और वामन चिंसोकर, इन्होंने मुझे टीच किया था इस चीज़ को। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभी
बहुत थोड़ा मिलने लगा है। बीच के पीरियड में बहुत इजीली लाइनो अवेलेबल होता था, बीच में 10-12 साल बंद हो गया था, अभी फिर से मिलने लगा। ये जो टिपिकल ओरिजिनल प्रिंट मेकिंग का जो लाइनो है, उसके ऊपर लाइनो एचिंग, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे शक्कर का पानी बनाते हैं वैसे पानी बना के टाइम वाइज उसको ऊपर लगाने के बाद वो एच होता है। जैसे कि जिंक प्लेट के ऊपर गम बाइट करते हैं, सिमिलरली उसके ऊपर लाइनों के ऊपर गम बाइट की तरह उसको वो एसिड डालने का ईचिंग होता है। ये सिमिलरली लाइनों का ही है, मल्टीप्लेट किया हुआ है। इसी सीरीज का एक सर्कुलर वर्क चंडीगढ़ 89 की पीरियड में चंडीगढ़ के म्यूजियम में भी कलेक्शन में है, लाइनो एचिंग का ही। मेरे जो वर्क का जो कंसेप्ट है, उसमें के जो सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत सारे जो स्पिरिचुअल साइन एंड सिंबल्स है उसमें देखते हैं। मेरे आपने यहाँ पे भी सर्कुलर वर्क देखे, हाउ टू कॉमन पीपल क्रिएट ए पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट वे। एक आम आदमी अपने में किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करता है कि अपने यहाँ जैसे कि सिटी है तो चांदी के घर, हर घर में चांदी का भगवान होगा, किसी घर में सोने का होगा, लेकिन एक गांव में जाओगे तो आपको ये कुछ नहीं मिलता है। एक नॉर्मल पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर ऑरेंज कलर होता है लगा हुआ, और गांव का बुजुर्ग कोई बोलता है कि ये हनुमान जी का मूर्ति है, हनुमान जी दिख रहे हैं इसमें, तो पूरा गांव उसको हनुमान जी का मंदिर समझ के उसकी पूजा करने लगते हैं। तो मेरे 84, 88 उस पीरियड के काम में इस तरह के सिम्बॉल्स बहुत सारे आते थे। इसमें आप गणेश जी के दिखेंगे, स्वास्तिक दिखेंगे, स्टार दिखेगा, ओम दिखेगा, ऐसे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स आते थे उस वक्त। अभी के कामों में भी ये सब दिखता है, लेकिन समय के अनुसार, एज के अनुसार वो फिल्टर होके सिंप्लीफाइड होते गया है। प्रिंट मेकिंग में अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। बहुत बार हम वुडकट करते हैं, जिंक प्लेट करते हैं, कोलोग्राफ करते हैं। बहुत बार प्रिंट लेने के बाद इमेज अच्छी नहीं लगती, लेकिन ब्लॉक के ऊपर जब कलर लगाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि क्यों नहीं इस ब्लॉक को ही पेंटिंग की तरह हैंडल करें। इस जो हम ब्लॉक बनाते हैं कोलोग्राफ को प्रिंट करने के लिए, तो क्यों इस ब्लॉक को ही पेंटिंग की तरह हैंडल करें। ये जो मुझे विजुअल दिखने लगा तो फिर मैंने ये शुरू किया, ये एक कोलोग्राफ की तरह ही ब्लॉक बनाया और पेंट किया। जैसे बहुत बार कैनवास के ऊपर अलग अलग मटेरियल लगा के रिलीफ बनाते हैं, तो मैंने ये पेपर के ऊपर अलग अलग मटेरियल, पेपर, राइस पेपर, अलग सॉफ्ट पेपर, हैंडमेड पेपर, अलग अलग टेक्सचर वाले पेपर लगा के मैंने ये ब्लॉक्स बनाना किया और कोलोग्राफ की तरह पेंट किया। इसको कोलोग्राफ की तरह ब्लॉक बनाया और पेंट किया। ये पेपर के ऊपर अलग अलग ये हैंडमेड पेपर टेयर करके, राइस पेपर, इस तरह से उसको पेस्ट करके फिर उसको प्रिपेयर करके पेंट किया हुआ। ऑयल कलर, ये मोस्टली सभी ऑयल कलर है, ऑयल ऑन पेपर। एक समय था कि हैंडमेड पेपर के ऊपर जो सरस बोलते थे वो कोट करते थे, और उसके ऊपर, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तब हमारे लिए ऑयल पेपर परचेस करना कैमल का बहुत मुश्किल होता था, तो हम वो एक जानवर के हड्डी से कोई गोंद बनता है, सरस बोलते हैं हमारे इधर, तो हाँ, तो वो लगा के हम उसके ऊपर ऑयल कलर करते थे। हाँ, तो उसी तरह से ये पेस्टिंग करने के बाद प्रिपेयर करके उसके ऊपर ऑयल कलर का पेंट किया हुआ है। यही चीज़ मैंने फिर कैनवास में भी लाने की कोशिश की। तो इसमें ये जो फॉर्म दिख रहे हैं और ये वाला फॉर्म, ये बीच में जो सर्कुलर फॉर्म है, ये पूरा उसी तरह से किया हुआ कैनवास के ऊपर पेंट के लिए किया हुआ कोलोग्राफ है। कैनवास के ऊपर पेंट के लिए किया हुआ कोलोग्राफ है। ये जो वर्क था कि खैरागढ़ के पास, जैसे कि मैं अलग अलग स्पिरिचुअल जगह पे देखता हूँ, जाता हूँ, और जो स्पिरिचुअल एलिमेंट मुझे इंस्पायर करती है उससे थोड़ा सा मैं काम में आ जाती है ये विजुअल्स मेरे। तो खैरागढ़ के पास एक दमदा करके एक जगह है, उस जगह पे हम जब ये नवरात्रि में पूजा करते हैं देवी की, कलश होता है, टेराकोटा का एक मटका होता है, पूजा करने के बाद, पूरा विधि होने के बाद हम उसको पानी में या कहीं नदी में उसको बहा देते हैं।
वहाँ पे एक संत बाबा ने वो बहाए हुए मटके को कलेक्ट करके 3 मंजिला एक मंदिर बनाया हुआ है। एक ट्राइबल जो संत आदमी ने बनाया हुआ है, और उस 3 मंजिला आदमी जब मंदिर देखा हुआ है, जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, तो उसने मटके के ऊपर मटका रख के बनाया हुआ है। और वो पूरा मतलब एक हिसाब से वो रबिश करके आपने थ्रो किया है, लेकिन उसको कलेक्ट करके उसने एक स्पिरिचुअल जगह बनाई। आज पूरा वो दमदा गांव उस जगह पर विजिट करता है, प्रे करता है, मन्नत मांगता है। तो मतलब एक थ्रो की हुई चीज़ भी आपके मन में एक एनर्जी क्रिएट करता है। तो मैंने 2020 में इस सीरीज़ के ऊपर दमदा सीरीज़ करके मैंने एक जहांगीर में शो किया था। फिर जो मेरे कामों में काम करता हूँ, तो आपने देखे होंगे कि मेरे विजुअल्स में काफ़ी सारे ट्रायंगुलर फॉर्मेशंस आते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना स्कल्पचरल फॉर्म में बनाऊं उसी काम से रिलेटेड। तो उस ट्रायंगल को मैंने 3 डायमेंशनल बनाया, और जो पेंट करता था जो 2 डायमेंशन सरफेस के ऊपर, उसी तरह मैंने इस फॉर्मेशन को पेंट किया है। क्योंकि मेरा जो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है, जो टेम्पल्स होता है, तो टेम्पल के ऊपर का जो शिखर होता है, तो उस तरह से ये मुझे फील हुआ, और उसको लेकर मैंने ये फॉर्मेशन बनाई। और सेम पेंटिंग के ही एलिमेंट इसके ऊपर 3 डायमेंशनल फॉर्मेशन में है। उसी में का ये रिलीफ इमेज है, कोलोग्राफ में इम्बॉस प्रिंट, और उसी से रिलेटेड ये शुगर एक्वा और सॉल्ट एक्वा किया हुआ है। ये कोरोना के पीरियड में घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, तो घर में जो अब बचा हुआ आर्टिस्ट के स्टूडियो में का जो सामान है, तो कोलोग्राफ के ऊपर जो मटेरियल मिल रहा है उसको बना के कि वो ये प्रिंट है, मुझे अच्छे लगे, तो फिर वो कंटिन्यू कोरोना के कारण मिली हुई मुझे एक देन है घर के अंदर की, शुरू किया काम इसमें। फिर जो मैंने वर्क किया था अभी लेटेस्ट में, लास्ट ईयर जहांगीर आर्ट गैलरी में एक शो हुआ था ट्रांसमिट करके, और मैंने जैसे कि हम लोगों को भी जैसे अलग अलग यंग जनरेशन कुछ इंस्टॉलेशन करता है, कुछ करता है, तो मुझे भी लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने मेरे वर्क में जो मैं फॉर्म यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे जो वर्क है, मेरे वर्क में जो फॉर्मेशन है, उसी फॉर्मेशन को लेके मैंने एक इंस्टॉलेशन किया था, और इस इंस्टॉलेशन नाम का था प्रदक्षिणा। जो मंदिर के बाजू में जो घूमते हैं, और वो जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने जो हिंदू स्पिरिचुअल फंक्शन में जो धातु यूज़ होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो होता है कॉपर। क्योंकि कॉपर की प्लेट होती है, कॉपर का कलश होता है, ये सभी चीज़ें, कॉपर का चमचा होता है, ये सब चीज़ें पूजा के लिए जो यूज़ होती है, धातु कॉपर होता है। तो मैंने जो यूज़ किया मटेरियल वो कॉपर है। जैसे मैंने इसके पहले में दिखाया वो पेपर का बनाया था, तो ये कॉपर का यूज़ किया हुआ है। और कॉपर में भी जो कंसेप्ट थी, तो उस कंसेप्ट में कुछ फॉर्म को बहुत फाइन पॉइंट्स मिला है, और कुछ फॉर्म्स बीच में रुके हुए हैं। मतलब हम मंदिर में जाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, सुख शांति की मनोकामना करते हैं, तो वो चीज़ सबको आत्मसात नहीं होती है। 100 लोगों में से 4-5 लोग होंगे, उसको खुशी होती है, सुख शांति मिलती है। तो आप इसमें देख रहे हो करीब करीब ये 50 फॉर्म थे, 50 में से 5-6 फॉर्म ऐसे होंगे कि लास्ट तक पहुँचे हैं, और कुछ बीच में ही रुके हुए हैं। तो ये पूरे फॉर्म्स एक अलग अलग हाइट्स के ऊपर मैंने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। और रही बात जो हम कलश रखते हैं पूजा के टाइम, वो चावल के ऊपर रखते हैं। तो इसी तरह ये पूरा स्कल्पचर मैंने चावल के ऊपर इस्टेब्लिश किया हुआ है। बहुत सारों को लगेगा कि ये इसका और प्रिंट मेकिंग क्या रिलेशन क्या है। तो जैसे हम प्लेट बनाते हैं, वैसे ही ये फॉर्म फ्लैट के बजाय 3 डायमेंशनल फॉर्म को मैंने प्रिंट मेकिंग का प्लेट की तरह मैंने इच किया हुआ है। कुछ सिंगल्स फॉर्म से वो इस तरह से इच करके इंटैग्लियो करके उसको फिक्स किया हुआ है। धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में बोलने के लिए उठा हूँ। एक नशा सा हो गया था आपका काम देखते देखते, और ये शब्द बोले बगैर मैं शायद अगला शो नहीं देख सकता। इस छत के नीचे सभी लोग बहुत कहना चाहिए पहुँचे हुए
आत्माएं हैं जिन्होंने दुनिया को कला के माध्यम से बहुत कुछ देना है। और जब ऐसे लोगों के साथ हम इकट्ठे बैठते हैं तो वो हमारी जो संकल्प है, हमारी इच्छा शक्ति वो बढ़ जाती है। आनंद साहब के नाम के अनुरूप इनके काम में भी सीमित को अनंत की तरह देखना, नश्वर को अनश्वर की तरह देखना। आनंद साहब, मैं ये शब्द इसीलिए कह रहा हूँ कि आने वाले आपकी यात्रा में हर जगह आपका पांव दबाएंगे ये कि आप चलते रहें। ये मेरे शब्द आपका। कहते हैं कला में आंखें एक टाइम बंद हो जाती हैं और दिमाग की आंखें खुल जाती हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन दिखाई उन आंखों से देती है, फिजिकल आंखें नहीं। और शुरुआत में जो आपने अपने गुरुओं को याद करते हुए अपना आभार व्यक्त किया, ये वो शक्ति है जो हर सृजनात्मक शक्ति के पीछे खड़ी रहती है। सो मेरे ये शब्द आपका सदैव कहना चाहिए, आपको आदर देते रहें। और भीम जी का भी मैं अभी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो इतना शौक लेते हैं, यहाँ पहले स्क्रीन छोटी होती थी, इनका मन था कि यहाँ सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन हो। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं इस मामले में। थैंक यू सो मच भीम जी, इट्स सो ग्रेट। थैंक यू सो मच आनंद साहब, थैंक यू सो मच। I would like to call Mr. Vijay Bagodi. First of all, I would like to thank Mr. Bhim Malhotra ji for inviting us, all of us in fact, for this platform, which is, I don't have to really say that how prestigious platform this is. Like here the whole Chandigarh is created on this platform. So for us also it is a privilege to come here and work with all other artists actually. So I really thank Bhim Malhotra ji and Chandigarh Lalit Kala Academy and of course Lee Corbusier Studio team also. ये काम ये पूरा एक जर्नी का पिक्चर नहीं देगा, वो scattered and randomly I selected for this presentation. So you will get an idea how I traveled from the beginning from now actually. Like, so you can, while seeing the images, you will get to know. This is my recent work I can say actually. जब लास्ट निकम सर मुझे बुलाए थे, वहाँ उन्होंने एक आर्ट स्टूडियो स्टार्ट किया और विद द हेल्प ऑफ गैलरी लाइक, तो उनके लिए निकम सर को कंटिन्यू काम करने के लिए वो बहुत खुशी हो के उन्होंने इनके लिए एक स्टूडियो खोला। और निकम सर का हृदय देखिए, वो बच्चों को ज़्यादा हेल्प होना चाहिए बोलकर बच्चों को इन्वॉल्व करके वो काम करा देते। तो उस स्टूडियो का शायद ओपनिंग शो होगा या कुछ होगा, तो हमको भी बुलाए थे। बीइंग ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिम, लाइक आई फील fortunate to go there and take part in that actually. तो हम कुछ आर्टिस्ट लोग जाके काम किए थे, उन्होंने पोर्टफोलियो बनाए थे, तो उसके लिए ये काम किया हुआ। उसी टाइम पे बड़ौदा में फ्लड वगैरह हो चुका था। काफ़ी बड़ौदा में जब भी फ्लड होता है तो मगरमच्छियाँ सब वो विश्वामित्री नदी से बाहर आ जाते हैं, काफ़ी रोड में ही चलते रहते, उसका ही एक रिफ्लेक्शन मेरा काम में। This is also created for another portfolio, but some other platform actually. This is mainly about human spirit actually. So it is etching and aquatint. Mainly aquatint है, etching टेक्निक यूज़ किया हुआ है, तो डायरेक्टली ब्रश से आई इन अ वे आई प्लेड सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक टू क्रिएट एन इफेक्ट। ये काफ़ी पुराना काम है मेरा, लिनोलियम में किया हुआ मल्टी कलर। सो
This is just an deity image, like this is a series of works I have done on. It's a fairy tale called Princess and Fool. Actually, आप सब जानते ही होंगे ये पंचतंत्र का एक फेरी टेल स्टोरी है, तो उसी में से एक एक इमेज मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये मोस्ट रिसेंट वर्क है। हम लोग गोवा में गए थे एक वर्कशॉप में, तो वहाँ पे एक कंफ्यूज हो गया था कि सब लोग बोलते थे एक थीम में करना है और कोई बोलते थे नहीं चलेगा ऐसा, तो फाइनली द ऑर्गेनाइजर सेड नहीं, यू बेटर वर्क ऑन थीम एक्चुअली। सो थीम वाज दैट वंदे मातरम एक्चुअली। So in that theme, I try to express my own way of, interpretation. This is purely line and etching actually. ये एक बड़ौदा में एक हमारा ही एक स्टूडेंट ने स्टूडियो स्टार्ट किया, उसको लिथो लेखा बोलकर नाम दिया उसने। तो उसका इनॉग्रेशन के लिए मुझे और ज्योति भाई को बुलाए थे, तो हम दोनों को वी आर सपोज टू क्रिएट ए वन लिथोग्राफ वर्क फॉर हिज स्टूडियो एक्चुअली। दिस इज़ वन ऑफ दैट एक्चुअली। सो वो भी शुरुआत देवी से शुरू हो जाए बोलकर। ये रिसेंटली एक मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट है, पेंटर इन भावनगर एक्चुअली। उन्होंने बहुत योगदान दिया आर्ट के लिए, मगर वो लैंडस्केप वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे। रिसेंटली इज पास्ड अवे। सो उनका वाइफ हमारे पास आई, सर हम उसका नाम ये करने के लिए थोड़ा सा कुछ आर्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ पैसा लेके आई थी, हम वो पैसा उनका नाम से कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। हम बोले पैसा कैसा कुछ नहीं, आपका जो विचार है वही बहुत उनका आत्मा को शांति देने वाला विचार है। तो वो उनको बोला कि हम एक आर्टिस्ट लोगों को बुला के एक पोर्टफोलियो बना दूंगा, आप पोर्टफोलियो आप किसी को भी सेल करो या कुछ गिफ्ट करो, जो भी है, जो भी उसका राशि आ जाता है उसका राशि से आप एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करो, आपका पैसा हमें नहीं चाहिए बोलकर। ऐसा एक 10-12 आर्टिस्ट में भी 15 आर्टिस्ट वहाँ के लोकल आर्टिस्ट वगैरह हम मिलके एक पोर्टफोलियो किए, तो उनका पोर्टफोलियो के लिए ये बनाया हुआ। दिस इज एक्चुअली हॉरिजेंटल, बट आई डोंट नो हाउ टू मेक इट एक्चुअली। तो रिसेंटली आर्ट फेयर के लिए एक पोर्टफोलियो बनाए थे हमने, तो ये दिस लास्ट आर्ट फोलियो, सो उसके लिए एक लिथोग्राफ किए थे और स्टोन भी डिस्प्ले किए थे हमने से, तो उसका एक काम है। ये मॉडल स्टडी का ही एक ड्राइंग है। सो डायरेक्टली लाइक ब्रश और इंक से किया हुआ ड्राइंग है। अभी आजकल तो मॉडल स्टडी सभी आर्ट स्कूल में कम हो गया है, बिकॉज देर इज़ ए पर्टिकुलरली इन आवर कॉलेज देर इज़ सम रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअली। हम जब पढ़ते थे न्यूड स्टडी भी होता था, बट अभी यू नो हाउ द एटमॉस्फेयर अराउंड लाइक, तो काफ़ी चीज़ें कमी होते जा रहा है, तो चीज़ें बहुत कुछ चेंज भी होते जाएगा, ऐसा मैं सोच। मैंने काफ़ी उटकट्स किया, अपने ही फ्रेंड्स का पोर्ट्रेट्स बनाने का कोशिश किया। देयर इज़ अ सीरीज ऑफ वर्क, all of them titled as this is supposed to be a portrait of my colleagues, like, but they are no more now actually, so only these woodcuts pictures I have actually. Just कुछ example लाया मैंने, just आपको दिखा। This is supposed to be my third etching actually, when I during my study time actually. और ये गलती से ड्राई पॉइंट लिखा है, बट ड्राई पॉइंट नहीं है, दिस इज एन एचिंग एक्चुअली। दिस इज ड्राई पॉइंट एक्चुअली, काफ़ी इम्पीरियल साइज का ये है। इट्स कॉल्ड शैडो विल नॉट ऑलवेज फॉल स्ट्रेट।
सो ये एक्रेलिक शीट पे किया हुआ, तो so as I mentioned in my text, in my work there are a lot of socio-political elements reflects, but may not be directly but very metaphorically, so this is one of like that, it is also dry paint on acrylic actually. ये सिमिलर एक पेंटिंग हम लोग नासिक में एक वर्कशॉप होता है, इसी का एक आधार पे किया हुआ था. This is also an etching and aquatint, slightly earlier work actually. ये भी थोड़ा पहले का काम है. It's called a rite for a dead man actually. But slightly all these works have a satirical elements of the socio-political issues, so if I start telling all those things, it will never end actually. ये फॉर्चून रीडर जैसे उसका इस पे किया हुआ. दिस इज ऑल्सो बिट अर्ली वर्क एक्चुअली. माई टीचर्स like Rini Dhumal, you must have really heard, I'm sure. So she was starting a work, printmaking setup or a studio in Baroda actually. So for that studio to run, like a financial fund generate करने के लिए एक portfolio बनाया था, उसके लिए ये मैंने भी पार्टिसिपेट किया था. ये this is actually based on Tipu Sultan, so, but again, as I said earlier, a series of work इस पे भी किए थे. तो इसका एक this is again a destructive kind of situation which reflected on the work actually. This is again same atmosphere, tried to bring in my work actually, which is very destructive elements, one could see. I call it, like an unlimited agony, etching, and it's a 20 by 30 size. This is again a large etching actually, 20 by 34 size, made into 3 parts actually. It's called I cannot bring back the years. So हम हमेशा बोलते हैं पीछे दिनों का जो ये है खुशी है, लाना मुश्किल है ऐसा, वही उसी का आधार पे कुछ किया हुआ है. This is again etching and aquatint. This is also based on riots happening, communal riots and all actually. So ये भी एक मीडियम में पिक्चर देख के मुझे लगा मैं भी I should try actually. So this is aquatint and etching. This is a soft pastel drawing. All these are pastel drawings are done on short stories of from here and there actually. This is called moving god, so in south, we take the idols in a boat and immerse in the water actually. This etching was done on an homage to laborers, This is again a tribute to laborers. Like we use anybody who has some full of pocket of money, then start using others as a laborers, So
It's also metaphorically I showed in a bitter kind of. This is again based on Tipu's series of work actually. Actually, this exercise, given by the Aspes Gallery, like long back actually. So you can make a small 5 prints and for the show, So most of the printmakers have done and given for the show. The series of when I was working with B.V. Karan for the theatrical this thing in Mysore. So we used to go for the sketching early morning when they do rehearsals and all actually. So I used to take my students over there to practice sketching and all. तो उनमें से एक 4-5 काम मैंने उनका थिएट्रिकल सब्जेक्ट पे मैंने किया है, इंक्लूडिंग देयर इज ए फिल्म कॉल्ड उत्सव, यू रिमेंबर, यू मस्ट हैव हर्ड, उसके लिए भी कुछ डिजाइन किया था मैंने, तो उसी आधार पे एक एचिंग भी किया मैंने, तो वो भी शायद इसमें इंक्लूड किया है तो देख सकते हैं। ये एक्चुअली 4-5 एलिमेंट को रिलेट करके काम किया हुआ है। इसमें एक्टिविस्ट हाउ डू दे परफॉर्म, लाइक हाउ सिम्बॉलिकली they reach the audience to pass their message, so animal protest के लिए एक उनका भी एक metaphorically मैंने दिखाया। So this particular work I also titled "Don't listen to him, you will lose your heart." So it is also that message it gives to the audience that like you must listen. If you listen, then you will lose your heart, something. Actually गणेश का इमर्स करने का दिन ये इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली। जो गणेश को पूजा सब हम करके आते, जो गणेश को खड़ा करते जो सभी वर्कर्स, वो उसी दिन अर्थक्वेक हो चुका था। उसी दिन ये लेबरर्स पूरा फुल फैमिली वाज उस हादसा में हो चुके थे, तो उन्हीं का आधार पे मैंने किया हुआ, इन द वेक ऑफ गॉड ऑफ गुड फॉर्च्यून। दिस इज अगेन डिस्प्लेस्ड पीपल हु डिस्प्लेस्ड forcefully, like this is called Gandhi at the feet of Gandhi ji. So once we all we were pride of Gandhi ji. In the present situation we are making mockery of him, like, so in that base I have tried to show my own way of expression, yeah. This is two plates done in a different occasion. So I tried to club together and made this thing between shades and shadows. Again it has a satirical thing, there's a lot of satirical things plays in my works actually, and I also like to enjoy working in that manner. This is a almost our full plate 20 by 40 made into 2 parts actually. One is photo etching, the other one is hand drawn thing. It's again earthquake when Bhuj had a that to generate fund for the victims, we all made a big show in Baroda as well as Ahmedabad. So we generated a lot of money and got lot of clothes and other things, tents and all gifted to them actually. When we went there, it was a very different bad experience. In fact, they already got so much gifts from other countries, like they were all refusing, please don't give now, when we want we will approach to you. This is done in a different occasion.
again it is based on don't listen to him, you will lose your heart. It's like, thank you. ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम विजय जी के सामने और आनंद जी के सामने बैठे हुए हैं और उनके काम देख रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि कला व्याधि में समाधि लगा देती है, शोर को स्वर देती है। आज हमने देखा है। बहुत पहले शायद कोई जानता हो, यहाँ ग्रुप 8 की एग्जीबिशन थी। जगमोहन चोपड़ा साहब और बड़े अनुपम सूद जी भी आए थे म्यूजियम में। तो वहाँ ड्राइंग को लेके एक डिस्कशन शुरू हुई। मैं शायद स्टूडेंट था कि ड्राइंग क्या है, और एक स्टेटमेंट मैं याद नहीं मुझे किसने दी थी, जिसपे सभी एकदम खुश हो गए। आज मैंने आपकी ड्राइंग देखी तो मुझे एक घटना याद है और आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ सर। थैंक यू सर। उसने कहा जब रास्ता मंजिल बन जाए, कई बार ड्राइंग हम किसी पेंटिंग के लिए शुरू करते हैं लेकिन वो ही पेंटिंग बन जाती है। और आपकी ड्राइंग में सर मुझे लगता है कि कोई मंजिल है नहीं। मामट एक एस्थेटिशियन हुए हैं, उन्होंने लिखा था सेल्फलेस लॉलेस डिलाइट enables man to create those lines which are not the servant of any law, they are only the outcome of delight. मैंने आपको एचिंग प्लेट के सामने इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा है, आपका हाथ कई बार ऐसे अचानक खिलता है और वो लाइन सोची नहीं होती, वो आपके आनंद का प्रतीक होती है। वो लाइनें आपकी ड्राइंग में हमने देखी हैं। ये जैसे कोई तबला वादक या हारमोनियम में बजाते बजाते जब इतना मस्त हो जाता है तो उंगली केवल ऐसे स्वरों पे चली जाती है, उसका कोई नाम नहीं है, वो केवल मस्ती है। और आज हमें मस्ती मिल गई आप लोगों के काम से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू So sir, thank you very much. Such a wonderful presentation. We are blessed with your beautiful, unique composition works. मैं देख रहा था कि दो आर्टिस्ट, दोनों का अलग अलग स्टाइल। तो एक तो हमारे चंडीगढ़ में जो ज्योमेट्री के साथ कर्ब्यूजर ने प्ले किया है, अनंत जी, इन्होंने फ्री फॉर्म को ज्योमेट्री के साथ कंपोज करके सिलेंड्रिकल फॉर्म्स। तो उसमें मेरे को चंडीगढ़ का भी कुछ टच नज़र आ रहा था। जैसे आपने ट्राइंगल के साथ प्ले किया हुआ था और जो स्केयर था, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स थे। एक दूसरी तरफ हमारे बागड़ी जी सो फ्री, तो फ्रीडम ऑफ लाइंस। तो वी रियली एंजॉयड द वर्क्स ऑफ बोथ द आर्टिस्ट। सो बहुत अच्छा लगा। वैसे ये दोनों आर्टिस्ट को मैंने, चलो ये तो वक्त हुआ, वैसे भी मैंने उनको 2-3 दिन से देख रहा हूँ। दे आर वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ। तो आज सुबह जैसे ही यहाँ पे स्टूडियो खुले तो मैंने फ़ोन किया इनको, तो मैं कहा आपको आज गाड़ी नहीं आ पाएगी। कहते नहीं, हम तो पैदल पहुँच गए यहाँ पे। तो सच, तो वैसे तो बिल्कुल पास है। दे लव वॉकिंग मतलब जी। हालांकि ये जो इनको देख के हमारे श्रीलंकन आर्टिस्ट भी बड़े इंस्पायर हुए, ये भी पैदल आए हैं वहाँ से। हाँ, वो तो पैदल घूम ही रहे। So this is, I think, I felt very happy. You are enjoying the Chandigarh roads and the Chandigarh and people. Yeah, people. Thank you so much. So हमें भी आपका बहुत अच्छा लगा, और जितना अच्छा आपको उतना ही अच्छा आपका काम लगा। तो काम रियली, सबसे बड़ी बात है कि काम वही होता है जिसमें आप इंजॉय करो। जरूर कोई भी काम अगर आप इंजॉय कर रहे हो तभी उसका रिजल्ट आता है, तभी उसमें सक्सेस इन्वॉल्व है। तो आपने जो भी काम किया, चाहे आप सर हैं, आप हैं, आपने पूरा इंजॉय के साथ काम किया हुआ है। तो उस चीज़ का, सो दिस इज़ वेरी रिमार्केबल थिंग एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट। तो बहुत अच्छा, हमें वी आर ब्लेस्ड विद योर दिस प्रेजेंटेशन। So thank you so much for your beautiful presentation. Thank you, sir. Thank you so much, Nikam sir and Bagudi sir, for being here, for your presence here, and for inspiring us with your works. And thank you very much, Chandigarh Lalit Kala Academy, B. Malhotra sir, our chairperson, who has actually given us this opportunity, inviting artists from different parts of India and inspiring us all, our Chandigarh artists as well, and our art lovers and students.
So thank you so much, sir. With this, we will conclude. But please wait for a few minutes. There's special something organized for the artists.